जहाँ पर ये मसाजिद थी उसी मुकाम पर इन मसाजिद को तामीर किया जाए। आखिर में हुकूमत से एक बार फिर यही मुतालबा कर रहा हूँ कि हुकूमत जल्द से जल्द। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासत तेलंगाना के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR ने आज दिल्ली का दौरा करते हुए निर्माण भवन जाकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए बजट जारी करने की अपील की, जो कि 2,537.81 करोड़ मुख्तस है। उसमें से कम 11,084.8 करोड़ का बजट बराए PMAY अर्बन जारी करने का मुतालबा किया। इसके अलावा भी दोनों लीडर्स के बीच काफ़ी उमूर पर सैर हासिल बहस मुबाहिसा हुआ। आखिर में उड़ान स्कीम के तहत वरंगल एयरपोर्ट के रुके हुए काम पर भी मरकजी हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर गौरव उप्पल के साथ साथ तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन B विनोद कुमार वगैरह उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। केंद्र పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మరియు హౌసింగ్ మరియు పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రివర్యులు హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారిని కలిసి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని పురపాలక శాఖకు సంబంధించిన పలు అంశాల విషయంలో చాలా లోతుగా సుదీర్ఘంగా చర్చించడం జరిగింది। అందులో ముఖ్యంగా వారి డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులందరినీ కూడా గౌరవ మంత్రి గారు వెనువెంటనే ఆదేశించి పిలిచి అన్ని రకాల సూచనలు కూడా ఇచ్చినందుకు ముందుగా వారికి ధన్యవాదాలు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన గౌరవ మంత్రి గారికి రాష్ట్రంలో పట్టణాలు ముఖ్యంగా ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి ఏ రకంగా సాధిస్తూ ఉన్నాయి, పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఏ తీరులో అమలు చేస్తూ ఉన్నాము, నివేదికను నాకు సమర్పించండి అని చెప్పి మంత్రి గారు కోరారు। ఈరోజు గౌరవ మంత్రి గారికి వివిధ శాఖలు అంటే ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే వివిధ విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఏ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో వివరించి చెప్పి మనకు ఉదాహరణకి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో దాదాపుగా ఒక బ్యాలెన్స్ ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 217 కోట్లు ఏవైతే రావాల్సి ఉందో ఆ డబ్బులు వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది। అమృత్ స్కీమ్లో కూడా మరి మనకు ఒక 351,77,00,000 రూపాయలు విడుదల చేయాల్సి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం, దాన్ని కూడా తొందరలో శాంక్షన్ చేయాలని చెప్పి కూడా మంత్రి గారిని కోరాను। 15వ ఆర్థిక కమిషన్ యొక్క గ్రాంట్ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణలోని అన్ని పట్టణాలకు కూడా రావాల్సి ఉంది। దానిలో హైదరాబాద్ నగరం మిలియన్ ప్లస్ సిటీస్ కేటగిరీలో ఉంది, మిగతా పట్టణాలన్నీ కూడా నాన్ మిలియన్ ప్లస్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి। మొత్తం కలిపి ఒక 783 కోట్లు ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ రావాల్సి ఉంది, దాన్ని కూడా విడుదల చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది। వాటితో పాటు మన తెలంగాణలో భారతదేశానికి ఆదర్శంగా నిర్మాణం చేస్తున్న 2 పడక గదుల నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వివరించి చెప్పి పట్టణ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 1,40,000 పైచిలకు ఇళ్ళు ఏవైతే కడతా ఉన్నామో పట్టణ ప్రాంతాల్లో వాటికి సంబంధించి కూడా దాదాపుగా 1,1184 కోట్ల డబ్బులు ఏవైతే రావాల్సి ఉందో అంటే మొత్తంగా చూసినట్టయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నా డిపార్ట్మెంట్కి మా మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించి 2,537 కోట్ల 81 లక్షల రూపాయలు వివిధ రూపాల్లో ఏదైతే రావాల్సి ఉందో వాటన్నిటిని కూడా సత్వరమే మంజూరు చేయవలసిందిగా గౌరవ మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేశాను। शहर हैदराबाद के बहुत सारे गवर्नमेंट व खानगी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेस ने आज DME किंग कोठी के रूबरू ज़बरदस्त धरना देते हुए अपना मुतालबा पेश किया कि कोविड-19 पेशेंट्स के इलाज व मुआवजे से जुड़े सभी डॉक्टर्स व नर्सेस का ख़ास ख्याल रखा जाए और अगर ये मुतासिर होकर ख़त्म हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा इनके घर वालों को पहुंचाते हुए 1 करोड़ की एक्स ग्रेशिया फराहम की जाए और अगर ये कोविड-19 से मुतासिर हो जाते हैं तो इनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जाए जिसका खर्चा गवर्नमेंट उठाए। लिहाजा इनके इस मुतालबे से साबित हो गया है कि जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये इलाज व मुआवजा करते हैं वो ख़तई काबिल क़बूल नहीं है। लिहाजा इनके सिलसिले में आवाम का एक बड़ा बजट यूं ही ज़ाय हो रहा है ना। आदाब हमें दिन पूरा गवर्नमेंट डॉक्टरों, स्टाफ नर्सेस, देन पैरामेडिकल, देन जूनियर डॉक्टर, पीजिया, हर पूरा हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरा मिलके आज हम एक गवर्नमेंट को तेलंगाना गवर्नमेंट हानरेबल CM KCR सर को हम रिक्वेस्ट मान जा रहा हैं। वो इससे हम हमारा हेल्थ मिनिस्टर ईटन सर भी हम रिक्वेस्ट पहले बात 2 महीने से पहले हम जाके हम रिक्वेस्ट लेटर भी दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया। तो हमारा जो डॉक्टर हो, हमारा सिस्टर होंगे, हमारा पैरामेडिकल सिब्बंदी होंगे,
और लैब टेक्नीशियन वाला, सिक्योरिटी, 4th क्लास वाला, पूरा अब तक पूरा 9 मेंबर्स एक्सपायर्ड हुआ ड्यू टू कोरोना वजह से। ये कोरोना सीजन में हर लोग को, ये पुअर एंड नीडी पीपल को अच्छा करने के लिए, जो गरीब लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोल के जो हमारा राष्ट्र मुख्यमंत्री जो बोलिया, वो वजह से हम पूरा अच्छा ट्रीटमेंट, हमारा वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर हमारे घर में हमारा माँ बाप, हमारा बाल बच्चा पूरा है घर पे, सो वो भी हम एक्सपोजर हो रहा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते करके हमारा घर पे वो भी एक्सपोज हो रहा। हमारा क्या बोल रहा है, हम बोला तो हमारा एक सपोर्ट दो बोल के हम गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मगर अब तक गवर्नमेंट एक कॉमन पॉलिसी वजह से अब तक नहीं दिया। हम यही मांग चाहते हैं गवर्नमेंट को 1 करोड़ एक्सग्रेशिया देना तेलंगाना गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम दी 50 लाख जो रहा केंद्रीय गवर्नमेंट जो दे रहा 50 लाख, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 करोड़ एक्सग्रेशिया हमारा केसीआर साहब देना बोल के हम एक डिमांड जा रहा हूँ। और एक क्या बोला तो, और जो मर जा रहा हो डॉक्टर उनको ग्रुप 1 कैडर होना, घर पे जो अच्छा पढ़ के रहते पढ़ के लिखे वालों को ग्रुप 1 एक जॉब देना, कोलू देना बोल के हम सोच रहा। और हमारा जो सिस्टर होंगे, हमारा जो पैरामेडिकल होंगे, लैब टेक्नीशियन होंगे, सैनिटरी सिक्योरिटी 4th क्लास वाला होंगे, उनका भी जो वजह से वो रूल है वो उनकी वजह से उनको भी वो जॉब गवर्नमेंट उनको वाला भी हाथों भी देना चाह रहा। अब तक पूरा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट में 9 लोग मर चुका है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना, और फ्यूचर में और किसी को कुछ आता है भी गवर्नमेंट सपोर्ट करना पूरा बोल के मैं हमारा टीवी वैसे हम विज्ञप्ति कर रहा हूँ। नाम बोल। मेरा नाम डॉक्टर लालू प्रसाद, तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ। हुजूर अक़दस नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक रहा है कि अपने आप को फ़िरक़ों में, तंजीमों में मत बांटो। ये बड़ी मजबूत और अहम हदीस है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी शहर हैदराबाद की जमीयत अहले हदीस की इस हैदराबाद और सिकंदराबाद के सदर शफीक आलम खान जमाल की सदारत में एक प्रेस मीट लगाई गई, जिसमें बतलाया गया कि इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है। ये अल्लाह के घर ज़मीन पर सबसे अफजल व बरतर हैं। इन मसाजिद में सुबह शाम और दीगर औक़ात में अल्लाह को याद किया जाता है। इन मसाजिद में मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इसके अलावा ये खुशहाली, अमन व सुकून की जगहें होती हैं। यहाँ लोगों के दिलों का तज़किया होता है, अखलाक व किरदार व मामलात की इस्लाह की जाती है। ये मस्जिदें उख़ुव्वत व भाईचारगी व मसावत व बराबरी का दर्स देती हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक के पैगाम को आम करना और इख्तलाफ व इंतशार को ख़त्म करना, उम्मत की शिराज़ा बंदी, अमन व अमान और दिलों को जोड़ना, आपसी मोहब्बत व उल्फत पैदा करना और जज्बा एहतराम पैदा करना, यह सब मसाजिद से ही मुमकिन होता है। उलुल अज़्म नबियों ने तामीर मसाजिद में हिस्सा लिया। रसूल अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ख़ुबा और मस्जिद नबवी तामीर की और ताहयात इन मसाजिद की इमामत व खिदामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आज भी दुनिया में जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं, इन मुकामात पर मसाजिद आबाद हैं और मुसलमान अपने घरों से ज़्यादा मस्जिदों से मोहब्बत और ताल्लुक़ात रखते हैं। ऐसे वक्त में जब किसी मस्जिद को नुकसान पहुँचता है या पहुँचाया जाता है तो मुसलमान एक आवाज़ होकर उठ खड़े होते हैं, अपने ईमान और जज्बात का इजहार भी करते हैं। इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद में सेक्रेटरीट की असर नौ तामीर को बुनियाद बनाकर 2 मसाजिद को मुनज़्ज़म कर दिया गया था। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ़देह मामला बन गया है। मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे शहर और मुल्क की आवाम सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और मालूम हुआ कि बहुत जल्द सेक्रेटरीट की तामीर शुरू होने वाली है। लिहाजा जमीयत अहले हदीस हुकूमत से यह मुतालबा पेश करता है कि इन मसाजिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करवाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला सारे मुसलमान एकजुट होकर चंदा जमा करके ये मसाजिद खुद अपने पैसे से तामीर करवा लेंगे। हुकूमत जहां अपने आप को सेक्युलर हुकूमत बतलाती है, इसका अमली नमूना पेश करे और ये जिम्मेदारी से आगे बढ़े कि मुसलमानों और उसकी इबादत गाहों की हिफाजत करे। लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसा इक़दाम करना इंतहाई मज़मूम हरकत मानी जाएगी। मज़ीद एहतजाज और इख्तिलाफ के सिलसिले में हुकूमत संजीदगी से गौर करे और फ़ौरन सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की इजाज़त दे। लिहाजा अगर ऐसा नहीं होता है तो मुसलमान उसको दोबारा तामीर करने तक खामोश नहीं बैठेंगे। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के माहौल के चलते गणेश फेस्टिवल को सीधे साधे अंदाज में
बिना बैंड बाजे धूम धड़ाके के मनाने का आवाम को मशवरा दिया था ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग पामाल न हो सके, साथ ही कातिल मरज कोरोना वायरस मजीद फैल ना सके। लेकिन आज शहर की बैंड एसोसिएशन के सदर वेंकटेश और जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव ने इस हुक्म के खिलाफ में शहर हैदराबाद के मादनापेट में एक मीटिंग बुलाकर मीडिया के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया कि बैंड बाजे पर से इम्तना हटा दिया जाए ताकि इनकी जिंदगियां चलाई जा सके, चाहे वायरस का ये शिकार ही क्यों ना बन जाए। इन्होंने बतलाया कि शहर में 1000 से ज़ायद बैंड बाजे पार्टीज रवादवा हैं जो शादी ब्याह और ख़ास तौर पर गणेश फेस्टिवल में पूरे साल का कमा लेते हैं, लिहाजा इन पर से इम्तना हटाते हुए इन्हें खाने का मौका दें, चाहे वायरस से ये लोग मुतासिर ही क्यों ना हो जाए। మన సంతోష్ నగర్ భవానీ బ్యాండ్ నుంచి మాది ట్విన్ సిటీస్ అసోసియేషన్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ వాళ్ళ మొత్తం అందరం కలిసి ఇక్కడ ఈరోజు సమావేశం అయ్యాము. గత మార్చ్ 24 నుంచి 22 నుంచి ఇప్పటి వరకు మాకు పెళ్ళిళ్ళే కానీ బోనాలకే కానీ వినాయక చవితికి కానీ ఎటువంటి పర్మిషన్ లేక పనులు లేక అందరము చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరు పనులు నడుస్తున్నాయి, బిజినెస్లు నడుస్తున్నాయి. అందరికీ లాక్డౌన్ వల్ల అందరూ ఓపెన్ చేసుకున్నారు, అందరూ దందాలు చేసుకుంటున్నారు, అందరూ బతుకుతున్నారు. ప్రజెంట్ మాకున్న వినాయక చవితి కోసం కూడా పర్మిషన్ లేదని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చెప్పడం వల్ల మాకు ఎటువంటి ఉపాధి కలగలేకపోతుంది, మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. మేము ఈ విషయమై మన మంత్రివర్యులు శివసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి కూడా మా యొక్క లెటర్ ప్యాడ్పై మేము విన్నపించుకున్నాము. అతను కూడా చూస్తామని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. మాకు అందరికీ మన భాగ్యనగర్ ఉత్సవ కమిటీ భగవంతరావు సార్ని కలిసాము, రాజా సింగ్ కలిసాము, అందరికీ లేఖలు ఇచ్చాము. మా గురించి కొంచెం ఆలోచించండి, మాట్లాడండి, ఈ విషయమై మాకు కొంచెం పర్మిషన్ ఇప్పించండి అని చెప్పేసి చెప్పాము. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడైనా కొంచెం మా పైన గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం దయతలిచి కొంచెం మాకు ఏదైనా సాయం చేయగలిసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. లేదా పర్మిషన్ అన్న ఇప్పించి మాకు కొంచెం వాయించుకొని కష్టం చేసుకోవడం కన్నా పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారము వినాయక చవితికి వినాయకులకి పర్మిషన్ లేకుంటుంది, బ్యాండ్కి కూడా ఏమో చెప్పలేము, చూస్తాము, ఆలోచిస్తాము, మాట్లాడతామని చెప్పేశారు. మా యొక్క ట్విన్ సిటీస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళం అందరం కలిసి మేము గవర్నమెంట్కి కోరుకుంటున్న ఒకటే, మాకు ఎటువంటి ఉంటే ఒకవేళ పర్మిషన్ ఇవ్వండి. అందరూ బతుకుతున్నారు, అందరూ బిజినెస్లు చేసుకుంటున్నారు, మేము కూడా చేసుకోవడానికి మాకు కూడా కొంచెం పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే పార్టీ వాళ్ళు కూడా మాకు పర్మిషన్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు. మేము పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి మేము పెద్ద మనుషులం కాదు, మాకు గవర్నమెంట్ నుంచే లేదని చెప్పారు. కాబట్టి మేము కూడా ఆలోచిస్తున్నాము. దయచేసి మాకు పర్మిషన్ అని ఇవ్వాలి, లేదా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ నుంచి. शहर और रियासत में कोरोना वायरस की पैंडमिक के चलते हुकूमत ने जो गणेश मंडपों पर आवाम की भलाई के लिए इम्तना आयद किया था, उसके ख़िलाफ़ में शहर हैदराबाद के जोबली हिल्स हलके के एक ज़बरदस्त होशियार बीजेपी लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने ये इम्तना बर्खास्त करने के लिए एसआर नगर के मैत्रीवानम क्रॉस रोड से एक रैली का एहतमाम किया और इस होशियार बीजेपी लीडर का साथ बहुत सारे दीगर होशियार लोगों ने भी दिया, जो ये थे अनंत लक्ष्मी, एल रामाकृष्ण, बी प्रशांत, श्रीजित वगैरह वगैरह. కార్యక్రమాల పట్ల ఓవైసీ తొత్తులుగా మారినటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ఆంక్షలు విధించడాన్ని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ మిగతా హిందూ సంస్థలన్నీ కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ గణేష్ మండపాలు పెట్టకూడదని, దానికి ఇవాళ కరోనా పేరు చెప్పి కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారమే మరి మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తామని, పూజలు జరుపుతామని చెప్తే మండపాలు ఏర్పాటు చేయొద్దు, మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తే కేసులు పెడతాము, మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతాము అని చెప్పి ఇవాళ పోలీసుల ద్వారా ఫోన్లు చేపిస్తూ ఉన్నారు, ఇవాళ బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పోలీసు ఇవాళ గణేష్ ఉత్సవ సమితి కానివ్వండి, మిగతా ధార్మిక సంస్థలు కానివ్వండి, సిపి గారితో, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ తోటి, ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపితే सदर जमीयतुल कुरैश तेलंगाना मोहम्मद सलीम की ज़ेर निगरानी कुरैशी बिरादरी के मुख्तलिफ मसाइल और दुश्वारियों के हल के लिए सदर दफ्तर वाक़ शाहगंज में आज एक खुसूसी मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया।
बाद अज़ां सदर जमीयतुल खुरैश तेलंगाना मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी तफसीलात बतलाईं। इस मौके पर बहुत सारे अराकीन, कारकुनान और जिम्मेदारों की कसीर तादाद भी वहां पर मौजूद थी। ये जमात का टेंडर बल्दिया से जो हुआ, जमात से जो टेंडर हुआ 150 रुपये लेना बोल के GHMC टेंडर करी स्लॉटरिंग फी, तो उसके ऊपर जो है ना कुछ लोग जो है ना गड़बड़ करके उसको जो है ना तितिर बितिर करने की कोशिश करे। वो तितिर बितिर नहीं, अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर लिए उन्हें जमात को दे देना चाह रहे, जमीयतुल खुरैश हैदराबाद को। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आपस का इंटरनल बातचीत करके जो है ना ये करे। अब उसमें फीस कम करो बोल के थे, गुत्तेदार मैं तो नहीं हूँ, मैं जमात का सदर हूँ। भाई सुने, अब तो सदर के नाते जो है ना हम बोले कि भाई पब्लिक जैसा चाह रही वैसा कर देंगे बोल के हम ये करें। तेलंगाना के वजीर ख़जाना टी हरीश राव ने आज नारायणपेट मंडल का दौरा करते हुए गुर्रेला गुंडा मौजे में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर करते हुए सारी रियासत को सैराब करने का जो मंसूबा बनाया था वो कामयाब हो गया है, क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से रियासत का गोशा गोशा पानी से भर गया है। वाज़ेह रहे कि इस मौजे को मुल्की सतह पर बेस्ट ग्राम पंचायत के एजाज़ से नवाज दिया गया है। यहाँ पर हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम के करीब 36 मकानात गरीब लोगों के हवाले कर दिए गए हैं। साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से दीगर मवाजिबात में भी इस स्कीम को बरवकार लाने का मंसूबा है और एक तरह से सफाई सुथराई में रियासत तेलंगाना को सारे मुल्क में अव्वलीन मुकाम हासिल हो गया है। इस मौके पर चेयरमैन रविंद्र रेड्डी, हल्के के MP, ZPTC और सरपंच वगैरह वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज अपने पार्टी के रुफ़का जग्गा रेड्डी MLA, श्रीधर बाबू MLA, MLC जीवन रेड्डी वगैरह के हमरा असेंबली मीडिया पॉइंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को समझाया कि कांग्रेस के रूह रवां सोनिया गांधी और राहुल गांधी पिछले 6 सालों से आवाम और ख़ास तौर पर पिछड़े तबकात के मफाद के लिए ही लड़ते आ रहे हैं, लिहाजा आवाम को भी इनका पासो लिहाज रखना ज़रूरी है। ये अजीम लीडर्स हैं और कुर्सी की लालच में काम नहीं करते हैं। हालिया इनके मुतय्यन करदा शख्सियतों के खिलाफ में हाई कमांड को शिकायतें करने पर इन्होंने तनकीद करते हुए बतलाया कि मौजूदा माहौल आपस में सख्त इत्तेहाद व दोस्ती चाहता है। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो रियासती सतह पर ही उसको हल करने की कोशिश करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिटलर की पार्टी नहीं होती है। एंड बाई हम पूरा CLP के पक्ष से ये बोलना चाहते हैं, इस देश में जब डिविजिव पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी और BJP पार्टी जो कर रहे हैं उसके ऊपर अकेला लड़ाई कर रहा राहुल जी, उसके साथ हम पूरा रहेंगे और इस देश के लिए सोनिया जी चाहिए, हर लड़ाई में हम उसके साथ ही रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट भानु प्रकाश ने आज भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के रजाकारों के साथ साफिलगुड़ा GHMC ऑफिस के रूबरू धरना देते हुए वहां के लेक पार्क में गणेश विसर्जन के खातिर खा इंतजाम करने का मुतालबा किया और आगे धमकी भी दी कि अगर फौरन इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी गई तो आगे ये लोग अनोखा एहतजाज करेंगे। గణేష్ మండపాలను నిర్వహించకూడదని చెప్పేసి మండప నిర్వాహకులను వేధించారు। కొద్ది మంది మాత్రం మా ధైర్యంతో గణేష్ మండపాలను నిర్వహించారు। కనీసం గణేష్ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడానికి కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు। ఇండ్లలో పెట్టుకున్నటువంటి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసుకోవడానికి కూడా చెరువులో నిమజ్జన ఏర్పాటు కనీసం చేయలేదు। మురికి నీరు, బాత్రూమ్ సంబంధించినటువంటి నీరు కలుస్తుంది, అందులో విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది। దీనివల్ల హిందువుల మనోభావాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి, హిందువులు తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉన్నారు। వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము మొన్ననే అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। అయినప్పుడు కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు। కాబట్టి మేము ప్రభుత్వ అధికారులను, ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం, మీరు ఈ విధంగానే హిందువుల మీద వివక్ష చూపిస్తే హిందువుల ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని చెప్పేసి హిందూ సమాజం, యావత్ హిందూ సమాజం హెచ్చరిస్తుంది। భారత్ మాతా కీ జై। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ में तारीखी फैसले के बाद आज एक और इसी तरह का फैसला सामने इस तरह से आया है कि शहर हैदराबाद के सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद की दोबारा उसी जगह तामीर की एक अपील को अदालत ने आज खारिज कर दिया है।
और बताया ये कि भारत के आर्टिकल 32 के तहत ऐसा मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने ख़ास तौर पर अपने ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि जजेस के एक पैनल ने यह फैसला सादर करते हुए बतलाया कि रियासती हाई कोर्ट ने इस इनेदाम की इजाज़त दी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अदालत होते हुए भी मुदाखलत नहीं कर सकती। तेलंगाना के ज़िले मेडचल की सूरारम पांडू बस्ती में किराए के मकान में रहने वाले शख्स माधव की जानिब से अपनी 21 साला पत्नी काशी बाई को कत्ल करके फरार हो जाने की खबर मिली है। पुलिस को इसकी खबर मकतूला की मां ने दी और पुलिस ने बाद तहकीकात बतलाया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले माधव की शादी 3 साल कबल महाराष्ट्र की इस लड़की से हुई थी और ये दोनों काम की तलाश में हैदराबाद आकर यहीं रच बस गए थे और आज ये हादसा पेश आ गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। वो देखो दामद 6 महीने गाँव को था, वो आया अभी भेजो बोला, वो भेजा बोला तो मेरा लड़की बोला वो शराब छोड़ा आता बोला, तो मैं बोला इधर ही रहो कर को खाओ, मैं भी खा रहा तुम भी खाओ बोल को बोली मैं। और ठीक है बोला, उन्हें रहते अच्छा रहते काम कर को खाते ऐसा बोला। जाने दो किधर तो छोटा मोटा रूम देख के कल शिफ्ट करेंगे बोल को सोच के मैं मलारेडी में काम करने गई, तो आने तक उन्हें वो काम करके भाग गया, मेरा छोटा लड़का लेके भाग गया। कब हुआ पता नहीं, मैं सुबह 8 बजे गई तो अभी 8 बजे घर को गई। अभी उन्हें कब से किया, अभी हम घर में आए तो कोई नहीं दिख रहा। तुम्हारा छोटा लड़का चलेगा बोल रहे हो? वो उन्हें साथ लेके गया, छोटा लड़का सुबह से साथ लेकर सुबह काम गया बोलता उन्हें। मैं फोन मारा तो हम बोल रहा मेरे को आती मैं काम आया, मेरे साथ दत्ता भी है ऐसा बोले, तो ठीक है अम्मा उसको संभालो किधर उधर भागेगा बोल को बोली मैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर ने आज अपने दीगर साथी लीडर्स जे बक्का और जलपल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद अली वगैरह के साथ अंबेडकर स्टैचू के पास धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हालिया शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके की एक शेड्यूल कास्ट 16 साल कम उम्र लड़की का रोहित बादला नामी एक हैवान नुमा नौजवान ने बलात्कार किया था, उसे गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए। बतलाया गया है कि यह जुनूनी हैवान नुमा शख्स बीजेपी के तर्जुमान सतीश बिदला का बेटा है, जिसके खौफ में शायद हुकूमत खामोश बैठी हुई है। इन्होंने हुकूमत तेलंगाना और महकमे पुलिस पर जोर देकर कहा कि अगर शेड्यूल कास्ट से वाकई इन्हें खुलूस है तो फौरन उसे गिरफ्तार करते हुए फांसी की सजा दें, वरना हैदराबाद के भी हालात मुल्क की दीगर रियासतों की तरह हो जाएंगे जहां कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे अंबेडकर जी के स्टैचू के पास न्याय के लिए खड़े हुए हैं। एक एससी बच्ची 16 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ है। रोहित बिडला जो का रेप किया है चाकू की दबाव पे। इससे पहले हम वुमेन कमीशन गए थे, वहाँ पे हम ऑलरेडी एप्लीकेशन दिए हुए हैं न्याय के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि बच्ची को विक्टिम को न्याय मिलेगा। हमारा यहाँ पे अंबेडकर स्टैचू के सामने खड़े होने का ये मकसद है क्योंकि अंबेडकर जी हिंदुस्तान का आईन बनाए हैं और इसी आईन की धज्जियाँ बार बार बीजेपी सरकार करी हुई है। ये जो बच्चा है रोहित बिडला जिसने विक्टिम के साथ ये नागवारा हरकत की है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सतीश बिडला का बेटा है और ये वही सतीश बिडला है जो आज से कुछ महीने पहले घर में धरने में बैठे थे जब एक दलित बच्ची का रेप हुआ था और वो एमआईएम के एक कार्यकर्ता शकील ने किया था। उसके लिए सतीश बिडला जी तब बोले थे रेपिस्ट को हैंग किया जाए, लेकिन अब रेपिस्ट उनके घर में हैं। हम उनसे न्याय चाह रहे हैं, वो क्या फैसला करेंगे बच्ची के हक में, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। पुलिस वाले जो हैं इस मैटर को लाइटली ले रहे हैं क्योंकि रेपिस्ट का वालिद इन्फ्लुएंस रखने वाला है, बीजेपी का लीडर है। बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं बयान सुनी मीडिया में, जब उनसे पूछे गया कि रेपिस्ट का नाम क्या है, रुक के उन्होंने जवाब दिए संतोष है शायद। इसका मतलब ये हुआ कि एसएचओ साहब जो है
कंप्लेंट भी सही से नहीं पड़े बच्ची की। बड़ी अफसोस की बात है कि ये पार्टी बीजेपी पार्टी जो है बलात्कारी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इनका स्लोगन जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो सिर्फ कहने की हद तक है, लेकिन इनके कई नेता जो हैं बलात्कार कर चुके हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ, आखिर जब से बलात्कारी जनता पार्टी पावर में आई है तब से हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। केसीआर जी से पूछना चाह रही हूँ, आखिर पुलिस वाले अपना फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा कर रहे हैं, पुलिस वाले न्याय का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कहाँ महफूज है हिंदुस्तान में या तेलंगाना में हमारी बहन और बेटियाँ। हमारी बहन और बेटियाँ पुकार रही हैं इंसाफ के लिए। क्या हो जा रहा है, पकड़ रहे हैं फिर कुछ महीने के बाद उनको छोड़ रहे हैं। इसलिए किसी और दरिंदे की हिम्मत हो जाती है ऐसा कांड करने में। अगर तब का तभी चौरस्ते पे ऐसे गुनहगारों को सज़ा दी जाए तो हर किसी के लिए ये इबरत है, हर किसी के लिए ये दहशत साबित हो सकती है। करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे कि हमको ये नहीं करना चाहिए। ये भी हमारी बहनें जैसी हैं, ये भी हमारी बेटियां जैसी हैं। शुक्रिया। विक्टिम के पेरेंट्स क्या करते हैं? नहीं है, वालिद हैं, बेचारे कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं, इसलिए हम इंसाफ चाह रहे हैं। और इनके यहाँ अलग अलग लोग आके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करो, किसी के सामने आवाज़ मत उठाओ। बच्ची जहाँ जा रही वहाँ चाकू दिखा के उसको डराया जा रहा है। एक तो ऑलरेडी उन्होंने मासूम, मजलूम, डरी हुई, सहमी हुई, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। घर में बैठी रहती है, उसको गोलियां खिला के, ज़बरदस्ती गोलियां खिला के उन्हें बेहोश थी, फिर उसके साथ ये जलील हरकत करा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।